Hello students, let's see exercise 7.11 of chapter 7. Figure shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source. L is equal to 5 Henry, C is equal to 80 microfarad and R is equal to 40 ohm. Part A, determine the resonance frequency, a source frequency which drives the circuit in a resonance. Part B, obtain the impedance of the circuit and amplitude of the current at the resonating frequency. Part C, determine the RMS potential drop across the three elements of the circuit. Show that the potential drop across the LC combination is zero at the resonant frequency. So here in this problem, in first part, we have to find the what resonating frequency. So let's find it. Here we can say a resonating frequency. Okay, we know that it's omega is equal to what? 1 over under root LC, because at resonance we know that XL is equal to what? XC. I is maximum, amplitude Z becomes minimum, and Z is equal to what? R. So here omega, a resonating angular frequency. Resonating angular frequency. Omega is equal to what? 1 over under root LC. You can also write omega 0 is equal to 1 over under root LC. So 1 as it is, under root L. Here value of L is what? 5 Henry. So you can say 5, and value of C is what? 80 microfarad. So 80 into 10 to minus 3. Okay. So here 80 into 5 becomes what? 400. 400 into, here we have micro means what? 10 to minus 6. So 400 into 10 to minus 6. So 400 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना होगा? 20. और 10 टू माइनस 6 का स्क्वायर रूट 10 टू माइनस 3 होगा. ठीक है, ये आप 10 टू माइनस 3 को ऊपर भेज दो, 10 टू प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 1000 डिवाइड बाय आपके पास क्या है? 20. तो ये आपका आंसर कितना होगा? 50 रेडियन पर सेकेंड. तो ये हो गया पार्ट ए. ठीक है, अब देखो पार्ट बी में आपको क्या फाइंड आउट करना है. लेट्स सी पार्ट बी. Here in part B it is asked that obtain the impedance of the circuit and amplitude of current at the resonating frequency. Means impedance find out करना है और current का amplitude find out करना है. ठीक है, so we know that at resonance we know that XL is equal to what? XC, and इसीलिए mod Z क्या होता है? R के इक्वल होता है. तो इम्पीडेंस मोड Z R के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा? 40 ओम हो जाएगा. और इसी पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? एम्पलीट्यूड करंट का. ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे करंट की. पीक करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट IM. ओके, चलो, तो IM का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? Vm by mod Z. Vm maximum value of voltage. But here we know that when सर्किट में जब आपको मेंशन करके नहीं दिया है कि मैक्सिमम वोल्टेज है कितना है, ठीक है, तो इन दैट केस जो भी आपको वोल्टेज दिया है वो हमने आगे बहुत टाइम डिस्कस किया है कि वो आपको क्या लेना है? आरएमएस लेना है. मतलब ये 230 वोल्ट आपको क्या दिया है? आरएमएस वोल्टेज दिया है. आप यहाँ पर डेटा में लिख सकते हो कि हियर वी आरएमएस इज इक्वल टू व्हाट? 230. आप इसको सिर्फ कैपिटल वी से भी डिनोट कर सकते हो. ठीक है, और Vm और VRS के बीच में हमें रिलेशन पता है कि VRS बच्चों कितना होता है? Vm by √2. तो आप Vm को सब्जेक्ट बनाओगे तो कितना होगा? √2 VRMS, यानी कि √2 V by mod Z. तो ये √2 V की वैल्यू बच्चों कितनी है? 230. ठीक है, और नीचे क्या है? Z की वैल्यू है आपकी 40. तो ये 40. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर कितना आएगा? 8.30 एम्पियर. सो इट इज व्हाट? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट. इन पार्ट सी we have to find what? Potential drop across each of three element. Okay, as well as show that the potential drop across the LC combination is zero at resonating frequency. So here in part C, to find the potential drop across each of element, let's find the
RMS current first. So here we can say RMS current IRMS, और you can say capital I कितना होता है, ये आप उसको लिख सकते हो V RMS by V capital V, और you can say V RMS by mod Z. तो बच्चों कैपिटल V जो है उसकी वैल्यू है आपके पास, ठीक है, 230, और Z जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू आपकी 40 एट रेजोनेंस. ओके, सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 23/4 एम्पियर. ओके, नाउ लेट्स फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर. पोटेंशियल ड्रॉप across the inductor. Okay, let it be VL. चलो V RMS, ठीक है, RMS पोटेंशियल ड्रॉप वो कितना होगा, I इंटू वॉट XL, यानी कि I इंटू XL जो क्या होता है ओमेगा है. ये ओमेगा 0 जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया वो 50 है, ठीक है. सर ये I की आपकी वैल्यू है 23/4, ओमेगा है आपका 50, और L जो है बच्चों कितना है 5, ठीक है. तो अगर इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों तो आपका आंसर आएगा 1437.5 वाट, यानी कि ये होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस व्हाट इंडक्टर. नाउ लेट्स सी पोटेंशियल ड्रॉप across the capacitor. Let it be VC. We know its equation I into XC, यानी कि I, और बच्चों XC का इक्वेशन क्या होता है 1/ओमेगा C, ठीक है, यानी कि क्या होगा I by ओमेगा C, ठीक है. चलो I हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 23/4, ठीक है, बाय ओमेगा C. ओमेगा हमारा 50 है, और C जो है वो 80 माइक्रोफेराड है, यानी 80 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है. तो इसको सॉल्व करने पे भी आपका आंसर कितना आएगा 1437.5 वाट. ये दोनों टर्म्स के आंसर आपके क्या आएंगे बच्चों, सेम ही आएंगे. नाउ लेट्स फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर. पोटेंशियल drop across the resistor. We know that its equation is equal to what IR. I is what 23/4, और जो R है आपका बच्चों यहाँ पे कितना है 40, ठीक है. 40/4 10 इंटू 23, ये कितना होगा आपका 230. मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप देखो आपने कितना सप्लाई किया 230 वाट, मतलब पूरा का पूरा कहाँ पे ड्रॉप होगा अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है. तो ऑब्वियसली L और C के अक्रॉस ये जो LC कॉम्बिनेशंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा होगा 0. हियर इन दिस पार्ट से भी आल्सो हैव टू शो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज व्हाट 0. सो लेट्स प्रूव इट. पोटेंशियल ड्रॉप across LC combination is, let it be VLC. So is equal to current I into what XL minus XC. Okay, you can also write XC minus XL. So ये करंट आपका है 23/4, ठीक है. XL minus XC बच्चों ओमेगा 0 L 1/ओमेगा 0 C, लेकिन एट रेजोनेंस XL इक्वल टू क्या होता है XC होता है, और अगर XL इक्वल टू XC है तो ये क्या हो गया 0. हियर यू कैन राइट द रीजन दैट XL इज इक्वल टू व्हाट XC एट रेजोनेंस. ओके, सो हियर वी कैन से पोटेंशियल ड्रॉप across the LC combination is what 0 at resonance. Okay.